हेलो गाइस, our today's topic is Dalton's law of partial pressure. बच्चों इसमें we are going to see the total pressure of a gas which is given by the mixture of a non-reacting gases. So let's start the Dalton's law of partial pressure. See the statement. The law states that the total pressure of a mixture of two or more non-reacting gases is the sum of partial pressure of the individual gases in the mixture. Okay, I repeat the statement that the law states that the total pressure of a mixture of two or more non-reactive gases is the sum of partial pressure of the individual gases in the mixture. Okay, इसका मतलब क्या है? If consider करो कि we are having a cylinder and in a cylinder the number of gases are enclosed. For example, तीन गैस enclose की है. One is carbon dioxide gas, other one is oxygen gas, and the third one is nitrogen gas. ठीक है, and that whole mixture of a gas exerting a pressure of 1 atmosphere, for example. Okay, तीनों गैस एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. अब जो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसका हुआ? ऑफ ऑल द 3 गैसेस. अंडरस्टूड? सो द डाल्टन्स लॉ सेज दैट कि वो जो ओवरऑल प्रेशर है it is because of all the 3 gases, or you can say a sum of all the partial pressure of all the 3 gases. What is partial pressure? Partial pressure यानी individual pressure of a single gas. Okay, individual pressure of the gas यानी CO2 का प्रेशर कुछ अलग होगा, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कुछ अलग होगा, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कुछ अलग होगा. सो तीनों का प्रेशर मिला के जो ओवरऑल प्रेशर है that is actually that 1 atmospheric pressure. You are getting my point? So this is called the Dalton's law of partial pressure, which says that the total pressure is the sum of individual vapor pressure, or you can say individual pressure of the non-reacting gas only. Okay, let's see the let's try to understand this concept by seeing the mathematical expression. See, mathematically Dalton's law is expressed as P total is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on at constant volume and temperature. इसका मतलब क्या है कि if we are having a say 3 non-reacting gases enclosed in a cylinder only, so the total pressure is the sum of pressure of first gas, pressure of second gas and the pressure of third gas. समझ गए? प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस सेकेंड प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस प्लस प्रेशर ऑफ थर्ड गैस, that is that the addition of all the 3 pressure of 3 gases gives the total pressure of the gas. Understood? This is all about the Dalton's law of partial pressure. Very easy law है. Okay, statement है और सिर्फ इतना ही mathematical expression है. There is no numerical based on Dalton's law of partial pressure बच्चों. Okay, आगे बढ़ता है फिर. We'll go for partial pressure and the mole fraction. We'll see over here the relationship between partial pressure and the mole fraction. Okay, a partial pressure यानी individual pressure of that gas. And what is mole fraction? Mole fraction बच्चों हमने 11th में पढ़ा था एक चैप्टर में, दैट इज़ सेकंड चैप्टर में एक्चुअली है वो मोल कॉन्सेप्ट. सो इट इज़ आई थिंक सो आप फेमिलियर नहीं हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सप्लेन द मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट. मोल कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स साइन. ओके, मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स साइन ओनली. ओके, अब वो मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट. अंडरस्टूड? अब बच्चों नंबर ऑफ मोल से फैमिलियर हो. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा है. करेक्ट. समझ लो कि वी आर हैविंग अ से सोल्यूशन. हमारे पास एक सोल्यूशन है, सॉल्ट का सोल्यूशन है. NaCl को डिज़ोल्व कर दिया है इन अ वाटर ओनली. अंडरस्टूड? दैट इज सॉल्ट सोल्यूशन. अब वहाँ पे जब प्योर सॉल्वेंट था बिफोर एडिशन ऑफ अ सॉल्ट, तब एक मोल फ्रैक्शन वैल्यू थी, एंड बाय द एडिशन ऑफ अ सॉल्ट इट बिकम्स अ सोल्यूशन. अब सोल्यूशन का कुछ मोल फ्रैक्शन वैल्यू होगा. अंडरस्टूड? तो अभी 2 चीज़ें हैं सॉल्ट सोल्यूशन में, एक तो है सोल्यूट एंड अदर वन इज़ अ सॉल्वेंट. अंडरस्टूड? सोल्यूट कौन सा है उसमें? NaCl. सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर. ठीक है. अब यहाँ पे समझ लो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट फाइंड करेंगे, उसको हम लोग x2 लिखेंगे. x2
सो x2 का इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूशन, ऐसा कहेंगे हम लोग उसको। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मोल फ्रैक्शन क्या है? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूशन। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ solvent upon number of moles of a solution. Solvent upon solution, that is mole fraction of solvent, and for the solution number of moles of a solute upon number of moles of a solution. It is called mole fraction of a solute. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग अ वैल्यू 1, आपको वैल्यू 1 मिलेगी, 1.0 ओनली। अंडरस्टूड? सो मोल फ्रैक्शन सिंपली अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कहेंगे। अंडरस्टूड? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में दो अगर कंपोनेंट है, जैसे मैंने कहा NaCl एंड वाटर, तो NaCl का इज़ अ सॉल्यूट ओवर देयर एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? क्योंकि थोड़े बहुत अमाउंट में NaCl ऐड करेंगे, सो स्मॉलर क्वांटिटी में अगर सोल्यूशन में कुछ सब्सटेंस रहता है उसको सोल्यूट कहा जाता है, एंड बिगर क्वांटिटी में अगर सोल्यूशन में कुछ सब्सटेंस होता है तो उनको सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है? अब उन दोनों का अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर आइडेंटिफाई करना है तो सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, तो क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इज इक्वल टू mole fraction of a solute is equal to number of moles of a solute divided by moles of solution, and mole fraction of a solvent, moles of a solvent upon moles of solution. तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स साइन। तो मैंने आपको मोल फ्रैक्शन क्या है एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया। Let's see the relationship between partial pressure and the mole fraction. Partial pressure यानी individual pressure of the gas, and mole fraction that is denoted by capital X, याद रखना। Now we already know uh, the pressure of a gas which is given by ideal gas equation. किससे कैसे लिखते हैं हम लोग? PV is equal to nRT। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन। PV is equal to nRT at constant pressure, volume and temperature। इसकी का मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ओनली, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अंडरस्टूड? हियर द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस in a mixture of a gases is proportional to its amount in that mixture. Okay, the above equation पे P directly proportional to N क्या explain कर रहा है? The pressure of an individual gas in a mixture, individual gas यानी क्या? A single gas in a mixture of a gases is proportional to its amount in that mixture. This is actually that mole fraction only. Okay, so अब देखते हैं the partial pressure of individual gases can be written in terms of ideal gas as follows. Okay, समझ लो कि सिलेंडर है अगेन, एंड इन दैट 3 गैसेस आर देयर। अंडरस्टूड? बहुत सारे गैस भी हो सकते हैं, 4, 5, 7, 8, 10 वॉट एवर इट में भी, बट हम लोग कंसिडर करेंगे ऑफ 3 गैसेस ओनली। तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग दिस ideal gas equation? PV is equal to nRT for gas 1, for gas 2, for gas 3। P1 is equal to, सी ऊपर वाला स्क्रीन के ऊपर इक्वेशन देखो, P is equal to nRT by V हो जाएगा ना वो। ओके, सो in that term only we'll write over here P1 is equal to N1 into RT upon V, this is for first gas। P2 is equal to N2 into RT upon V, this is for the third gas। P3 is equal to N3 into RT upon V, that is for third gas, actually the earlier one was for the second gas, and so on। अगर नंबर ऑफ गैसेस होंगे तो इसको कंसिडर करेंगे हम लोग एज इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड? तो फिर P टोटल क्या हो जाएगा? अगर P1, P2 एंड P3 ये क्या है? द प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, सेकेंड गैस एंड थर्ड गैस रिस्पेक्टिवली। सो P टोटल यानी टोटल प्रेशर कैसे हम लोग लिखेंगे? P टोटल इज इक्वल टू N1 इंटू RT बाई V प्लस N2 इंटू RT बाई V प्लस N3 इंटू RT बाई V। अंडरस्टूड ना? टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, सेकेंड गैस एंड द थर्ड गैस। अगर 3 गैस है एक सिलेंडर में क्लोज किए हुए, तो P1 क्या है? N1 इंटू RT बाई V, P2 N2 इंटू RT बाई V, P3 N3 इंटू RT बाई V। ओके, सो वही हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे टू गेट द टोटल प्रेशर ओवर हियर। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं फिर।
सो यहाँ पे आर टी बाई वी इज़ द कॉमन ओवर हियर, सो पी टोटल इज इक्वल टू आर टी divided by V is a common into N1 plus N2 plus N3 and so on. Understood? This N1, N2, N3 is actually gives the total number of moles, no? So we got the equation 2 over here. Therefore P total is equal to RT upon V into N total. Understood? RT upon V into N total. अब आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया। देखो P1 क्या है, N1 इंटू आर टी बाई वी, P2 N2 इंटू आर टी बाई वी, P3 N3 इंटू आर टी बाई वी। अंडरस्टूड? सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। सो हियर P1 की वैल्यू क्या है, N1 इंटू आर टी बाई वी, P2 की वैल्यू N2 इंटू आर टी बाई वी, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू P3 N3 इंटू आर टी बाई वी। तो तीनों के वैल्यू ऐड कर दी तो हमें इक्वेशन मिला हुई। अब फाइनली वी गॉट द इक्वेशन नंबर 2, दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी इंटू एन टोटल। अंडरस्टूड? नाउ विल गो फॉर द मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन क्या है, सी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये देखो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, वेर n तो क्या है बच्चों, n इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास समझो कि 3 गैसेस है, number of moles of first gas is N1, number of moles of second gas is N2 and number of moles of third gas is N3। अंडरस्टूड? अब हमें अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ फर्स्ट गैस तो क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी एडिशन ऑफ N1 N2 प्लस N3। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने, x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। Understood? So N1 representing number of moles of first gas divided by N1 plus N2 plus N3 representing number of moles of first gas, second gas and third gas, that is total number of moles। ठीक, इसी का मतलब हम लोग इक्वेशन 3 लिखेंगे, x1 is equal to N1 upon N total। Understood? x1 is equal to N1 upon N total। This is our equation number 1। This is the mole fraction, the presentation of mole fraction। Okay, from equation 1 and from equation 3, equation 1 कौन सा है देख लो, P1 is equal to N1 into RT by V, P2 is equal to N2 into RT by V, P3 is equal to N3 into RT by V। This is our equation number 1। See equation 3, x1 into N1 upon N total। Understood? So from equation 1 and 3 we'll get the equation N1 is equal to P1 into RT by V। Understood? N1 is equal to P1 into RT by V। This is our equation number 4। ओके, सो ये तो N1 के लिए हो गया, दिस इज़ फॉर N1। तो फिर N टोटल के लिए क्या होगा, N टोटल इज इक्वल टू P टोटल इंटू आर टी बाई वी। अंडरस्टूड? N टोटल इज इक्वल टू P टोटल इंटू आर टी बाई वी। सो हियर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 हमें मिला। ओके, अब दोनों अगर इक्वेशन को कंबाइन कर दे हम लोग, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को कंबाइन करते तो क्या होगा, सी बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, N1 अपॉन N टोटल, अंडरस्टूड, N1 डिवाइडेड बाय N टोटल कर लेंगे हम लोग, विच इज़ इक्वल टू एक्चुअली x1। देखो ना, सी द इक्वेशन नंबर 3, x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N टोटल। अंडरस्टूड ना, दैट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम लोग इक्वेशन 4 एंड 5 को कंबाइन करते तो हमें मिलता है N1 डिवाइडेड बाई N टोटल, N1 डिवाइड बाई N टोटल दैट इज इक्वल टू x1। ओके, विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट P1 अपॉन RT बाई V, P1 divided by RT divided by V whole divided by PT अपॉन RT by V। अंडरस्टूड? यहाँ पे RT by V कॉमन निकल जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सो हियर N1 अपॉन N टोटल इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। अंडरस्टूड? N1 अपॉन N टोटल इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो 4 और 5 कंबाइन करके वी गॉट द इक्वेशन 6, दैट इज N1 बाई N टोटल इज इक्वल टू P1 बाई P टोटल। देयरफॉर फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल। अंडरस्टूड? P1 इज इक्वल टू x1 बिकॉज N1 बाई N टोटल इज इक्वल टू x1, नो? सो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल। इक्वेशन 6 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इक्वेशन 6 में N1 अपॉन N टोटल को x1 से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज वी ऑलरेडी सीन ओवर हियर इक्वेशन 3 में देखो x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N टोटल। सो हियर इक्वेशन 6 क्या होगा हमारा,
सॉरी 7 क्या होगा, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल। ये तो हो गया फॉर फर्स्ट गैस और प्रेशर ऑफ द फर्स्ट गैस। सिमिलरली हम लोग प्रेशर ऑफ सेकंड गैस भी रिप्रेजेंट करेंगे, P2 इज इक्वल टू x2 इंटू पी टोटल। सिमिलरली P3 के लिए भी रिप्रेजेंट करेंगे, P3 इज इक्वल टू x3 इंटू पी टोटल। सो हियर वी गॉट द इक्वेशन 8 over there. Understood? Equation 8 मिल गया for the number of gases. Okay, thus this all these equations actually expressing the partial pressure of the gas is obtained by multiplying total pressure of the mixture. Okay, total pressure of the mixture by mole fraction of that gas. ठीक है, सो एक्चुअली ये इक्वेशन जो है 7th वन एंड इक्वेशन 8 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट एक्चुअली एक्सप्रेसिंग हाउ विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस। हमें एक पर्टिकुलर गैस का वेपर प्रेशर या फिर प्रेशर कैसे मिलेगा, ओके सिंगल गैस का प्रेशर कैसे मिल रहा है। जैसे P1 रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, P2 रिप्रेजेंटिंग प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, P3 रिप्रेजेंटिंग प्रेशर ऑफ थर्ड गैस। अब P1 के क्या है वैल्यू, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल, वेर x1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, एंड पी टोटल यानी टोटल प्रेशर। सो partial pressure of any gas is nothing but the product of x1 यानी mole fraction of that gas and total pressure of the gaseous mixture. ओके, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर। वही बच्चों यहाँ पे बोल्ड फॉर्म में लिखा है, दस पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर by mole fraction of that gas. Understood? Similarly, partial pressure of second gas that is P2 कैसे फाइंड करेंगे, x2 इंटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस x3 इंटू पी टोटल यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड गैस इंटू टोटल प्रेशर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, एंड टोटल pressure is nothing but the sum of all the gases, or you can say the sum of the pressure of all the gases present in that mixture. Thank you.